इसको मेरे पास लाओ। तो इसे थोड़ा थोड़ा पूछ रहे थे, तो ये बता नहीं पा रही थी अपनी बात को, लेकिन बड़ा विषय था, क्योंकि इसकी गवाही जो थी वो समझने वाली थी। क्योंकि मैं जब सुन रहा था तो शुरू में यही आई थी अपने घर से प्रभु के पास, जब इनके घर में बड़े हालात थे। अब सोचने वाली बात ये थी, मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे यहाँ सीख रही थी और कैसे विश्वास कर रही थी अपने पापा के लिए। क्योंकि ये अपने पापा से जब वो घर में आता था कोई भी चीज पकड़ लेता था, है ना, जैसे मारता था चीजों को, तो इसके अंदर एक डर बैठ गया था। जब भी वो घर में आता था ये डर जाती थी, सहम जाती थी। लेकिन मैं ये जानना चाहता था इसके मुंह से इसने कैसे विश्वास किया होगा। मेरे लिए ये थोड़ा सा समझना जरूरी था, क्योंकि यहाँ ये बताया नहीं गया था, क्योंकि इतनी घर में गरीबी थी। जैसे बताया गया था ना गवाही में कि इनके घर में कुछ भी नहीं था। जैसे जरूरत की जो चीज़ें होती ना रूटीन में लोगों के घर, तकरीबन हर घर में होती है, वॉशिंग मशीन, प्रेस, है ना, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, पंखा, ये सब चीज़ें जो भी चाहिए ना, घरेलू जो चीज़ें चाहिए रोज, तो इनके घर में वो भी नहीं थी। ठीक है। तो जब इनकी गवाही दी जा रही थी तो जिनके पास सब कुछ है, गाड़ियां हैं, कारें हैं, अच्छा पैसा है, तो वो लोगों को इस गवाही से क्या सीख मिलेगी? क्योंकि संसार के लोगों के लिए तो ये नॉर्मल है जिनके पास सब कुछ है। लेकिन तू बताएगी तब जब तू आती थी यहाँ पर परमेश्वर के पास, क्या तेरे अंदर बैठता था यहाँ से? मतलब हिंदी आती तुम्हें थोड़ी थोड़ी? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੱਕਾ ਕਰੂਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਸੁਧਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੁਧਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਦੱਸੇਂਗੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਦਾਦੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ? ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਚ। ਅੱਛਾ, 9ਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਬਦਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਦਲੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ? ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ? ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਦਲੇ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। 1 ਮਹੀਨੇ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ? ਨਸ਼ਾ ਸਾਰਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਲੇਸ਼ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਮੀ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਮੰਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ 9ਵੀਂ ਚ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ 10ਵੀਂ ਚ ਹੈ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਾਸ? ਨਹੀਂ, 8ਵੀਂ ਚ ਪਾਸ ਹੋਈ, 9ਵੀਂ ਚ ਹੁਣ। ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੇਰੇ? ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰੇ 300 ਤੇ 36। ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ?
मेरे 600 हाँ जी 600 336। सुनो सुनो, इधर देखो ध्यान ना, आप लोग ध्यान दो। एक्चुअली में ये छोटी सी बच्ची है, देखो अभी किसी के साथ आई, यहां आकर सुनने लगी टेस्टामनी, गवाहियों को। तो कैसे शुरू किया है इसने परमेश्वर के साथ चलना, जो यहां से पकड़ा। अब तुम्हारे पापा की उम्र कितनी है, तुझे कुछ पता है उनकी उम्र? नहीं पता। तेरी कितनी है ये बता दे। मेरी 15। तुम्हारे घर में कोई और बड़ा है कि सबसे बड़ी तू है? नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। है मैं सबसे बड़ी सबसे हूँ। बड़ी। हाँ जी। तो ये लगा लो इसके पापा की उम्र 36 साल होगी या 35 साल होगी इसके हिसाब से, या 37 साल होगी, इतनी उम्र होगी जितनी इसकी उम्र है। लेकिन 20 साल 15-16 सालों से वो नशा कर रहे थे। कैसे गांव के लोगों के द्वारा ये यहाँ आई, कैसे यहाँ बातें पकड़ने लगी परमेश्वर की, और इसने ये अंदर पक्के तौर पर बैठा लिया था कि परमेश्वर मेरे पापा को बदल देगा। और आज कितने महीने हो गए कि वो शराब नहीं पीते? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। तेरे पापा को? हाँ जी। नहीं, शराब छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਸ थोड़ा चेर ही होया शराब। 6 महीने बताया आपने? हाँ जी 6 महीने हो गए शराब छोड़े को। हालेलुया। ये सोच लो, इस बच्ची के कारण इनका घर बच गया। जबकि ऐसा नहीं ये बड़ी पढ़ी लिखी है या बहुत सारी बातें पकड़ती है या बहुत बातों में इसको समझ है, लेकिन जितनी भी बातें इसको पता है, मैं तुम्हें ये क्लैरिटी देना चाहता हूं कि परमेश्वर इतना भला है, इतना सामर्थ्य है। वो ऐसे नहीं है जैसे दुनिया समझ रही है। हमारे क्रिश्चियंस लोग, हमारे विश्वास करने वाले लोग, सोचो, क्योंकि हुआ क्या, एक विषय है, अभी बैठे रहना तुमने यहां। मैं ना एक क्रिश्चियन फैमिली को समझा रहा था, किसी कारण से उनका मन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, क्योंकि उनके घर में कोई हालात आया। हालात आने के बाद कई सारे रिश्तेदार है ना, जैसे वो क्या कहते हैं, अफसोस करने आते ना, कोई दुख की बात होती तो दुख साझा करना आते। रिश्तेदार आए, फिर वो अपने पास्टरों को लेकर आए, फिर उनके घर में वो पास्टर प्रार्थना करने लगे। फिर उनके बाद कई चर्चेस में उनकी प्रार्थना शुरू हुई, क्योंकि कुछ हालात ऐसा था। लेकिन वो जुड़े यहाँ थे। लेकिन उसके बाद सारी जगह पर, पता नहीं 8-10 जगह पर उनकी प्रार्थना शुरू होगी। लोग उनके घर में आने लगे, पता लेने लगे। उनको अफसोस था कि हम उतना नहीं ध्यान दे रहे। इस चीज का उन्होंने अफसोस जाहिर किया। हमारा एनिवर्सरी था, हम उसमें बिजी थे, वैसे हमारा ध्यान पूरा होता है, लेकिन उन्हें लगा। फिर मैंने उन्हें कहा, उनका मैंने विश्वास सही किया। मैंने कहा, क्रिश्चियंस हमारे जो लोग हैं, उनके हिसाब से उससे प्रेयर कराओ, उससे कराओ, इससे कराओ, इससे कराओ, इससे कराओ। उन्हें लगता है ये अच्छा विषय है, बुरी बात तो नहीं है, किसी से भी प्रेयर कराओ, है ना, बुरी बात तो नहीं है। जहां भी बोलो वो हमारी प्रे की, उसने की, तो किसी ने भी आपके लिए प्रे की तो बुरा विषय तो नहीं है ना, लोगों के हिसाब से। लेकिन याद रखना, ये विश्वास के लिए ये अच्छा विषय नहीं है, हमारे विश्वास के लिए। मैंने उन्हें बताया कि परमेश्वर ऐसे नहीं है कि तुम 50 लोगों को इकट्ठा करोगे तो फिर तुम्हारी सुनेगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम्हारा विश्वास खराब हो रहा है। मैंने कहा, जैसे मान लो आपने परमेश्वर के सामने प्रेयर की, जब मैंने आपके लिए की, ये बहुत है, इतनी बहुत है। अब आपका मन और आपका विश्वास बना रहना चाहिए। अगर वो मन नहीं बना, वो विश्वास नहीं बना, तो 50 क्या आप 100 लोगों को भी बोल दो प्रे कराओ या करो, कुछ होने वाला नहीं है। ये बड़ा ध्यान पूर्वक विषय था जो मैंने उनको सिखाया। अभी मैं इस पर बात करता हूं, पता नहीं तुम्हें कितनी समझ आई जो अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर
गरीब से गरीब की, आम के आम से आम की, किसी की भी, हर एक की, छोटे से छोटे बंदे की भी प्रार्थना सुनता है। अगर वो नहीं सुनता, वो कहता नहीं 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 नहीं, नहीं तेरी नहीं मैंने सुनी, तू कुछ नहीं है, वो बड़ा बंदा लेकर आ, या कोई तगड़ा पास्टर लेकर आ, फिर सुननी मैंने, ऐसे नहीं सुननी तेरी, फिर तो परमेश्वर अजीब हो गया। बोलो, ये गवाही मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दुनिया के लिए और गवाहियां इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मैं स्पिरिट से भरा हुआ अगुआ हूं। अब ये सोचो, ये बच्ची ना तो ज्यादा जानती है प्रभु बारे, ना इसको ज्यादा वचन की समझ है, स्कूल में भी नॉर्मल पढ़ती है, नॉर्मल इसकी लाइफ है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं है अभी इतनी, लेकिन जो भी जितना इसको समझ आया उतने से इसने परमेश्वर के आगे रखना शुरू किया। यहां से सीखकर, और जो भी मेरे मुंह से वर्ड आते थे उसको भी लिया, तो तुम्हारे सामने काम है। हालेलुया। मैंने भी वो दिन देखे जो घर में क्लेश होती है। जब मैं भी यीशु मसीह में नहीं था तो एक घंटे की भी क्लेश ऐसे लगती थी जैसे पहाड़ है। तो सोचो, ये तो बचपन से, जब से होश संभाल रही है तब से वो शराब पी रहा, झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, चोटें लगा देता था इनको, इसकी मम्मा को। डिप्रेशन में जा चुकी थी, डर बैठ गया था, सहम चुकी थी। जब भी वो घर में आता था एक डर सा बना रहता था। लेकिन परमेश्वर ने सुनी या नहीं सुनी? बोलो। कोई घर में विश्वास नहीं कर रहा था, अकेली कर रही थी, अकेली घर में प्रार्थना भी नहीं करने देते थे, लेकिन विश्वास से उसके सामने बातों को रखा। ये बड़ा विषय है हमारे लिए। जोर से तारीफ करो इस दुआई में। ऐसे बने रहना है, परमेश्वर तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। ठीक है? गॉड ब्लेस यू।